Good morning, student. Welcome back in 10th class. Okay, so now we will start the new chapter in economics, that is theory of supply. Okay, and this will be the first video of this chapter. Okay, so here I am going to tell you that what are the topics we will understand and we will learn in this chapter. Okay, it's a little mind mapping. Let's understand. The first is meaning of supply. In this we will understand the meaning of supply. Then difference between supply and stock. Okay, we will understand the meaning between difference between your supply and stock. Next is types of supply. There are different types of supply. Okay, so we will understand that what are the different types of supplies. Okay, then determinants of supply. Determinants of supply. What are the factors which affects the supply? Next is supply schedule and curve. What is supply schedule and curve? Okay. Next is law of supply. The same like law of demand. We have understood that here also we will understand the law of supply. What is the law of supply? Next is movement and shift of supply curve. What is movement and what is shift of supply curve? Next is difference between movement and shift of supply curve, that is extension, contraction of supply. Okay, then increase and decrease of supply. So we will understand all those things. And the last is elasticity of supply. We will understand the meaning, concept of elasticity of supply. Okay, let's understand the meaning of supply. Okay, what is supply? I just want to tell you that when we started that chapter demand, okay, this chapter is just opposite of that chapter. Okay, ये जो chapter है आपका supply, ये just demand का opposite है. When we were studying or learning about the demand, जब हम demand को समझ रहे थे, that time we were understanding from the concept of customer. हम as a customer उसको समझ रहे थे that when is demand is created in the market. Okay, so basically जो demand है, we understand that chapter with the customer's point of view. But this theory of supply we have to understand from the producer point of view. Producer के point of view से हमें समझना है, right? क्योंकि सप्लाई बेसिकली कौन करता है? प्रोड्यूसर करेगा, सेलर करेगा, राइट? तो व्हाट आर द कंडीशंस? ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस सप्लाई इन दिस चैप्टर. हम सप्लाई को समझेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट इट इज जस्ट ऑपोजिट और वाइस वर्सा ऑफ सप्लाई. ओके, नाउ सप्लाई, व्हाट वाज द डिमांड? डिमांड जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर इट. ओके, रेडी टू पे फॉर इट. बट यहाँ पे क्या है? द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन द गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस prices. This is said by Thomas. Okay, Thomas says that supply of good is the quantity. It is a quantity of any product. ये quantity है, right? Which is offered for sale, which is said that कि हाँ अब ready है, market में ready है बेचने के लिए पूरी तरह से, and at a given time and at various prices पे भी. मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो for example the producer is there, okay, either producer, seller, okay, उसने produce कर दिया product को. Now अब वो product को प्रिपेयर कर चुका है, अब उस प्रोडक्ट को वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार है. इवन इफ द प्राइस इज 20 है, देन ऑल्सो इज रेडी टू सेल. इफ द प्राइस इज 30, देन ऑल्सो इज रेडी टू सेल. एंड इफ इट इज प्राइस इज 50, देन ऑल्सो इज रेडी टू सेल. सो अगर ये जो प्राइसेस है, इन प्राइसेस पे सेलर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार है, दैट इज supply. Okay, this is supply. Clear? Now, so this is said by Thomas, and a general meaning of supply is the quantity of a commodity which a seller is able and willing to supply or sell at given prices. जब कोई seller given prices पे
अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए तैयार है at a particular period of time, at a particular place and at a given prices, then that is known as supply. Okay, this is clear. Supply clear है कि जो भी प्रोड्यूसर या सेलर रेडी है सेल करने के लिए मार्केट में, प्लस एट अ गिवन प्राइसेस, जो भी प्राइसेस हैं अवेलेबल या प्रोवाइड किए गए एट दैट प्राइस दे आर रेडी टू सेल द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज सप्लाई. क्लियर? नाउ वन मोर वर्ड इज देयर, दैट इज स्टॉक. स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक? नाउ अब यू विल से, तुम लोग कहोगे कि जो होता है सेलर्स के पास रखा रहता है एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, यस दैट्स ट्रू, वही बेसिकली स्टॉक है. ओके, बट here it is the total quantity of the commodity which at given time is available in the market with the seller. Now there is a little difference between supply and stock. जो टोटल क्वांटिटी है कॉमोडिटी की, दैट इज देयर इन द मार्केट, मार्केट में है, अवेलेबल है, बट इट इज अवेलेबल इन द मार्केट विद द सेलर, बट द सेलर इज नॉट रेडी टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइसेस. वो जो भी प्राइसेस है उन पे सेल करने के लिए वो रेडी नहीं है, वो उसके पास अवेलेबल है टोटल क्वांटिटी एंड इट इज केप्ट विद दैट सेलर, वो रखा हुआ है. ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोड्यूसर ने 4000 क्विंटल्स, ठीक है, 4000 क्विंटल्स राइस के प्रोड्यूस किए, राइट. अब इसमें से वो टोटल 2000 क्विंटल्स रेडी है 800 पर क्विंटल्स के हिसाब से बेचने के लिए, राइट. सो सप्लाई कितने की हुई? 2000 की, क्योंकि ही इज रेडी टू सेल इट. जो भी प्राइसेस है उस पे सेल करने के लिए रेडी हो रहा है सेलर, लेकिन टोटल स्टॉक उसके पास कितने का है? दैट इज 4000. Clear? So this is stock, okay, which is available with the seller in the market, which is available. Okay, so some differences are given in your book, just read it out, it's very easy. Okay, so this is the concept of supply and stock, and I have given you the difference also. Clear? Types of supply. Okay, we have understood the meaning of supply, what is supply, then stock. Okay, then there is a little difference between supply and stock. Now I will explain you the types of supply. There are 3 types of supply. Okay, supply clear होगा कि जो भी चीज है commodity product which is available with the seller and he is ready to sell that product at a given prices in the market, that is known as supply, right? Now basically there are 3 types of supply. First is your market supply. Okay, second is your short period supply, and the third is your long period supply, right? This market supply is also known as instant. This is also known as instant supply, right? So now market supply means current supply of a commodity in the market. Means here basically what is happening, the market supply refers to the करंट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट. ये नाम से ही पता है, इंस्टेंट, देन एंड देयर, तुरंत, राइट. कभी कभी क्या होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मार्केट में कि द सप्लायर नीड टू सप्लाई द प्रोडक्ट इंस्टेंटली इन द मार्केट, तुरंत देना है. एंड बिकॉज ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो आपकी बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है बहुत शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट, टू शॉर्ट. ओके, एंड it is very difficult for the supplier to adjust the supply between that period. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस पीरियड में सप्लाई को एडजस्ट करना. सो इट्स वेरी शॉर्ट, और ये बहुत ऐसी कंडीशंस में क्रिएट होती है जब मार्केट में अचानक कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए या कुछ ऐसा. फॉर एग्जाम्पल इन स्टार्टिंग व्हेन वी स्टार्ट द कोरोना वायरस स्टार्टेड, ओके, द पेंडेमिक स्टार्टेड, तो क्या हुआ था उस वक्त हमें पीपीई किट्स की, मास्क की इंस्टेंट सप्लाई करनी पड़ रही थी, राइट. तो क्या होता है ऐसे में, हम इंस्टेंट तुरंत देना है. ओके, इट्स अ करंट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, करंट सप्लाई करना है, राइट. नेक्स्ट इज योर शॉर्ट पीरियड ऑफ सप्लाई. शॉर्ट पीरियड ऑफ सप्लाई, इन दिस द टाइम पीरियड इज नॉट सफिशियंट टू मेक चेंजेस in supply according to demand. Means here it's very instant, but here short period is there. एक limited short period दिया जाता है, right? In that short period is there, but it's not sufficient enough to make changes in the supply.
सप्लाई में कोई चेंज करने में कोई टाइम नहीं रहता, राइट, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में, XYZ जो भी प्रोडक्ट है, राइट। सो अब क्या है कि जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं कि हम ये सोचें ज्यादा प्रोड्यूस कर लें, नई मशीन ले आए या कुछ ऐसा कर लें और लेबर्स हायर करें, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड सप्लाई है। हमें बहुत जल्दी विद इन 1 वीक, विद इन 5 days वी हैव टू सप्लाई द प्रोडक्ट, राइट। तो बहुत शॉर्ट पीरियड में 1 month, विद इन 1 month, ओके, 1.5 months वी हैव टू सप्लाई द प्रोडक्ट। तो इस पीरियड में हम क्या, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हम उनमें चेंजेस नहीं लगते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे रॉ मटेरियल्स, उनमें कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, राइट। सो कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी में हम चेंजेस कर सकते हैं, बट द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड, डिमांड के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते। जबकि सप्लाई क्या होती है, बेसिकली डिमांड पे डिपेंड होती है, राइट। डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई भी होने लगती है, बट यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड हम प्रोवाइड और सप्लायर्स नॉट एबल टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट इन द मार्केट, राइट, क्लियर। नेक्स्ट इज योर बेसिकली now next is your long period of supply. Now long period of supply means नाम से पता चल रहा है it's a normal situation, okay, it refers to that time period which is sufficiently long to make changes. It's normal period. In this there is enough time, we can produce, we can do whatever we want to do, and according to the demand and according to the price we can supply the product in the market. It's a normal condition, ठीक है। सो लॉन्ग पीरियड जो जनरल चलता है, ठीक है। अब मान लो किसी प्रोडक्ट की हमें जैसे विंटर में जरूरत है दिसंबर में, सो अभी प्रोडक्शन ऑलरेडी गोइंग ऑन, प्रोडक्शन हो रहा है, बट इन दिसंबर इट विल बी सप्लाइड, उसका स्टॉक रखा जा रहा है, द स्टॉक इज क्रिएटेड, बट इन दिसंबर दैट विल बी सप्लाइड इन द मार्केट, राइट। सो दैट इज लॉन्ग पीरियड, क्लियर। सो मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड and long period. There are 3 types of supply. It's instant, you have to fulfill the requirement, you have to supply, the supplier needs to supply the product instantly. Short period of time, here the time period is not sufficient to make changes in the supply. Supply में changes करने के लिए ज़्यादा time होता है. And the last one is the normal period. So in this the time period is sufficiently long to make changes according to the demand and according to the supply to the customers, clear. So this is all about types. Next is your basically individual and market supply, okay. Same just like demand, okay. Demand में भी हमने देखा था कि there are 2 types of demand, individual demand and market demand. जब कोई एक person या कोई एक firm demand करता है तो that is your individual demand, but if it is the demand is created by a group, by a market, that is market demand. So in the same way, individual demand, individual supply and market supply. In this, the quantity of a commodity which a firm is willing to provide an offer for sale at a particular price as a particular price during a specified period. In this, what is happening? Individual supply is that supply which a firm is willing to provide. एक इंडिविजुअल या एक फर्म, बेसिकली सप्लाई तो इंडिविजुअली एक फर्म ही करेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन ही करेगी. सो दैट फर्म इज विलिंग टू प्रोवाइड एन ऑफर फॉर सेल, ऑफर करने के लिए तैयार है एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज बाय अ फर्म. नाउ मार्केट डिमांड, क्वांटिटी दैट ऑल द फर्म्स, सारी organization, all the production companies, they are ready to sell and they are willing to sell their product and offer for sale at a particular price during a specified period is known as market supply. जब पूरी firm, सारी organization, they are ready to sell the product at a given price in the market, that is known as your market supply. So the types of supply and the individual and market supply, right? So factors affecting supply. Okay. Now I will explain you what are the factors which affects the supply. Right. So let's start. That there are some 10 factors are given in your book. You just write 4 or 5. 5 factors of factors affecting supply. Okay. Now first one is price of a commodity.
what was happening in demand? When the price of a commodity was increasing, the demand of that particular commodity decreases. Okay, ऐसा हो रहा था. But here there is a direct relationship with the price and supply. प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. When the price of a commodity will increase, then supply will also increase. किसी भी कॉमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, राइट? बिकॉज द फर्म वांट्स टू अर्न द प्रॉफिट. फर्म क्या करना चाहते हैं? प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, राइट? सो इन दिस कंडीशन अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस हाई हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? तो प्रोड्यूसर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है इट विल ऑल्सो बी इंक्रीज, वो बढ़ जाएगा, राइट? सो इन दिस कंडीशन इफ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी इंक्रीजेस देन द सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज. प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ जाएगी उसकी. ओके, नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटीज. प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटीज मीन्स द सब्स्टिट्यूट गुड्स. ओके, so basically what is happening here? Substitutes, complementary goods. Okay, now when the price of other commodity will increase then the supply will also increase, right? अगर किसी मान लो फॉर एग्जाम्पल द पीपल स्टार्टेड प्रेफरिंग कॉफी, राइट? कॉफी प्रेफर करने लगे इंस्टेड ऑफ टी, तो क्या होगी? जो कॉफी है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट? क्योंकि हाई प्राइस पे हाई सप्लाई, राइट? सो प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटीज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. बट वाइस वर्सा, इफ द प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी डिक्रीजेस, अगर वहीं दूसरी तरफ प्राइस डिक्रीज होगी देन ऑटोमेटिकली द सप्लाई ऑफ दैट प्रोड्यूसर विल इंक्रीज. ठीक है, तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स ऑल्सो अफेक्ट्स द सप्लाई. नेक्स्ट इज गोल ऑफ द फर्म. गोल मीन्स योर ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट फर्म? इफ द फर्म वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो हायर प्राइसेस पे अपनी सप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगा. ओके, द प्रोड्यूसर विल ट्राई टू सप्लाई द प्रोडक्ट एट हायर प्राइस. किसी भी कीमत पे वो हाई प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेगा. बट इफ द प्रोड्यूसर वांट टू सेल, बट अगर वहीं पे प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो जो भी अवेलेबल प्राइसेस हैं उस पे ही वो अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेगा, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन द गोल ऑफ द फर्म. फर्म का क्या गोल है? इफ द फर्म आइदर द फर्म वांट्स टू अर्न प्रॉफिट और वांट्स टू डू द सेलिंग ऑफ हिज प्रोडक्ट. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. अगर वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो प्राइस हाई होगी, दैट ड्यूरिंग दैट टाइम that supplier will try to supply the product. But if the sellers want to or the producer wants to sell the product, तो जो भी available prices है उन पे वो अपने products को sell करेगा, right? तो goal of the firm also matters. Next is your price of the production. Factors of production. You know that there are 4 factors of production which affects the production, right? So these factors of production also affects the supply. Now let's see how. मान लो the cost input, okay, the input, अगर if the cost is high, cost high हो गई है और prices जो है वो fixed है, अगर market में prices जो है वो fixed है, लेकिन अगर cost high हो गई तो क्या होगा? तो profit margin जो producer का है या supplier का है वो कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि price तो fix है लेकिन cost बढ़ गई है, right? मान लो cost थी 10 से हो गई 50, राइट? लेकिन जो प्रोडक्ट जो प्राइस था वो 50 ही है. तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट कम होने लगेगी. तो अगर कॉस्ट मान लो ज्यादा है, प्रॉफिट सेम है, तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई कम होती है, राइट? बट इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसकी हाई हो रही है तो प्राइस भी अगर हाई हो रही हो, इन दैट कंडीशन द सप्लाई विल बी मोर, सप्लाई ज्यादा होगी. लेकिन अगर कॉस्ट कम है, कॉस्ट आपकी मान लो कम लगी है बट प्राइस अच्छी है, तो इस कंडीशन में भी सप्लाई ज्यादा होगी. क्लियर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर मान लो कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम लगी देन और प्राइस अच्छी है, हाई प्राइस है, तो इन दैट कंडीशन द सप्लाई विल बी मोर. बट इफ द कॉस्ट इज हाई एंड द प्राइस इज वेरी लो, इन दैट कंडीशन द सप्लाई विल बी लेस, सप्लाई कम होगी. ठीक है, लेकिन अगर दोनों पैरेलल है, कॉस्ट भी हाई एंड द प्राइस इज ऑल्सो गोइंग हाई, इन दैट कंडीशन द सप्लाई विल बी नॉर्मल. क्लियर?
Now next, state of technology. State of technology means that which type of technology you are using. किस तरह की टेक्नोलॉजी आप यूज करें. If you are using upgraded and updated technology, then the production will be more. Production ज्यादा होगा, right? लेकिन if we are using outdated technology, बहुत पुरानी है, बहुत मतलब खराब हो चुकी है, जंग लग चुका है किसी मशीन में, और फिर उससे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो क्या प्रोडक्शन ज्यादा होगा? नो, नॉट पॉसिबल. तो आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है? आइदर यू आर यूजिंग अपग्रेडेड एंड अपडेटेड टेक्नोलॉजी, और यू आर यूजिंग आउटडेटेड एंड just for sake of production you are using that technology. So in that condition the supply also gets affected. ऐसी भी कंडीशन में क्या होती है? सप्लाई अफेक्ट होती है, राइट? अगर हमने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज की, हमारा प्रोडक्शन लो होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हम सप्लाई कम कर पाएंगे, राइट? लेकिन हम अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज करें, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे? सप्लाई ज्यादा से ज्यादा करेंगे, राइट? Next is your number of producers. Number of producers means that how many producers are there in the market. If there is only one producer and seller of a particular product, then the supply will be less. अगर सिर्फ एक सेलर, एक प्रोड्यूसर है, तो उस वक्त सप्लाई क्या होगी? बहुत लो होगी. सप्लाई विल बी लो, ठीक है? लेकिन if there are many sellers, producers and sellers, in that condition the supply will be high. क्योंकि for example shoe making companies है, there are Action, Bata, Liberty, so many, okay? So बहुत सारे हैं, choices है, तो इस कंडीशन में क्या होगी? बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है, बहुत सारे सेलर है, तो इस कंडीशन में सप्लाई ज्यादा होगी. लेकिन अगर कोई एक ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके सप्लायर्स बहुत और प्रोड्यूसर बहुत लिमिटेड होते हैं, मोनोपोली होती है, राइट? सो ऐसे प्रोडक्ट्स की सप्लाई बहुत लिमिटेड होगी और लो होगी, राइट? सो दिस इज योर प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, then goals of firms, price of factors of production, state of technology, and the number of your producers, right? Next is future expectation regarding price. Now in this, the future expectation regarding price means if in future the prices of the product are going to rise, in that condition the supplier will stop supplying the product. जब उसको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में उसकी सप्लाई प्राइस जो है प्रोडक्ट की बढ़ने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा? प्रेजेंट में अपनी सप्लाई को रोक देगा, और जब उसे लगेगा कि नहीं फ्यूचर में उसकी प्राइस हाई होने वाली है, तो वो जब प्राइसेस हाई होंगी, तो ड्यूरिंग दैट टाइम द सप्लायर विल प्रोवाइड द प्रोडक्ट, सप्लाई द प्रोडक्ट इन द मार्केट. और अगर जस्ट वाइस वर्सा, इन फ्यूचर द प्राइसेस आर गोइंग टू रिड्यूस, अगर फ्यूचर में प्राइस डिक्लाइन होने वाले किसी प्रोडक्ट के, तो वो प्रेजेंट में क्या करेगा? अपने सप्लाई को बढ़ा देगा. क्लियर? So the supplier does not want to bear the loss. Okay. Next is taxes and subsidies. Taxes and subsidies means if the supplier is paying high tax, अगर वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, तो क्या होगा कि वो सप्लाई कम करेगा, राइट? सप्लाई कम करेगा. लेकिन अगर वहीं फ्यूचर में उसको इफ टैक्सेस आर लो, ओके, और उसको सब्सिडीज मिल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में छूट मिल रही है, सब्सिडीज मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो सप्लाई ज्यादा करेगा, राइट? सो इन दिस टैक्सेस एंड सब्सिडीज, इफ द टैक्सेस आर हाई, okay, and no subsidies are given by the government, in that condition the supplier will supply less commodities. लेकिन just vice versa, okay? लेकिन अगर वही टैक्सेस कम है, सब्सिडीज भी मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में सप्लायर सप्लाई ज्यादा करेगा. नेक्स्ट इज नेचुरल फैक्टर्स. नेचुरल फैक्टर्स, नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो दिस पेंडेमिक में आपने देखा होगा कि किस तरह से, ओके, कैसे सप्लाई इफेक्ट हुई, और सप्लाई का इफेक्ट हुआ हमारे मार्केट में, राइट? प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक? तो क्या हो रहा था, कभी कभी कुछ तो सप्लाई कहीं ना कहीं नेचुरल फैक्टर्स, और अभी जैसे बारिश हो गई है, ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी? क्रॉप्स की सप्लाई इफेक्ट होगी, ठीक है? क्रॉप्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं फसल इफेक्ट होगी. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? नेचुरल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड ऑल्सो बी अवेलेबल इन द मार्केट. जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में, राइट? सो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो नहीं अवेलेबल है,
ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं सप्लाई हो पा रही है, जैसे लॉकडाउन के दौरान क्या था, सारी चीजें स्टॉप थी, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो सप्लाई थी, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, तो ऐसे में भी सप्लाई क्या होती है, इफेक्ट होती है. क्लियर? सो दीज आर द फैक्टर्स. ओके, यू राइट ओनली 4 factors of production in your notebook. Okay, now today's last topic, that is supply schedule and supply curve, the same like your demand curve. Okay, and demand schedule. Supply schedule is the, so supply schedule means it is a tabular representation of price and the quantity demanded. ये tabular representation, देखो टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, right? Price and quantity supplied. If the price is 2, then the supply will be 20. If the price is 3, supply will be 40. If the price is 4, the supply will be 60. And if the price is 5, the supply will be 80. So supply schedule is the tabular representation. एक tabular representation है price and the quantity supplied. And supply curve, it is a graphical representation of price and the quantity supplied. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई हुई मार्केट में. सो इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. क्लियर? नाउ see, but here one difference is that with your demand curve, I am here. Now in this, the graph will just go opposite of your demand curve. In demand curve, what was happening? The graph was going like this, right? This was the representation from right upward to left downward, right? Now, but here just vice versa. If this price of the product is 2, I have represented price on y-axis and quantity supplied on x-axis. So, if the price is 2, supply 20, price 3, supply 40, price 4, supply 60, and price 5, supply 80. Now, in this, the graph will go like this. Okay, in the like this, just vice versa. ये ग्राफ इस तरह से जाएगा. Clear? Okay, so this is your supply curve. Okay, so supply curve and supply schedule. I hope that this is clear, okay, to you. The factors today we discussed about the meaning of supply, okay, then your types of supply, stock, then your market and individual demand, supply, then factors affecting supply, and the supply schedule and supply curve. I hope that you have understood all these concepts. Okay, so I will continue in the next video. Thank you so much.